ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 2016 ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਟੋਟਲ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ क्यूकलाइम आर। क्यूकलाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸੀ ਇਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਡੀ ਇਜ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਜੋ क्यूकलाइम ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CaO, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन है। ओके, नैक्सट क्वेश्चन सैकेंड ते चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आर। नंबर ऑफ मोल्स जोड़े ने मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे विच। देखो पहले तो आपां की करते हैं, ऑक्सीजन का जोड़ा मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लैंदे हैं। एक ऑक्सीजन का जोड़ा मास है वह कितना होंदा 16 ग्राम के इक्वल। ऑक्सीजन गैस नूं आपां O2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 16 × 2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 32 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜੋ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ 1 ਮੋਲ। 32 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 1/32 ਦੇ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ किन्ने गिवन ने क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ग्राम, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ 1/32 ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਟ 0.375 ਮੋਲਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸੀ 0.375 ਮੋਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of जो Rutherford ਦਾ alpha particle scattering experiment ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ? A is the atomic nucleus, B electron, C is proton and D is a neutron। okay, D is a neutron। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ Rutherford ਦਾ alpha particle scattering experiment ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ एक गोल्ड फॉइल ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲਡ ਫॉइल ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਰੇ ਵਾਪਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਮੈਟਲ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? A ਇਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, B ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਮਾਈਨ, C ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਐਂਡ D ਇਜ਼ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਕਰੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਮਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮਾਈਨ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? A ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, B one atom acts as donor and other as acceptor, C option is the electrons are shared by only one atom,
डी इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टेक प्लेस बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट बॉन्डिंग दे विच की हुंदा है, कोवलेंट बॉन्डिंग चलो बाद डिस्कस करते हैं, आप पहले ऑप्शन समझो। ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन टेक प्लेस ये हुंदा है आयनिक बॉन्ड दे विच। आयनिक बॉन्ड दे विच लॉस और गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदा है, जिमें कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होंदी है Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव, क्योंकि जो सोडियम है वो एक इलैक्ट्रॉन नूं लॉस कर दिंदा है, क्लोरीन है जो वो इलैक्ट्रॉन गेन करता है, तो लॉस और गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन जिथे हुंदा उत्थे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होंदी है। नैक्सट इज वन एटम एक्ट्स एज अ डोनर एंड अदर एज एक्सैप्टर। जदों एक डोनर तो दूजा एक्सैप्टर की तरह हुंदा गा तो उत्थे कोआर्डीनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होंदी है, किसी कोआर्डीनेट बॉन्ड की। ओके, हुण जिहड़ा अपना क्वेश्चन सी भी इन कोवलेंट बॉन्ड्स दे विच की हुंदा गा इक्वल शेयरिंग हुंदी हैगी इलैक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स। इन्हूं एग्जाम्पल दे नाल समझदे हां आपां, जिवें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो मीनस ये आउटरमोस्ट शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने 1। ठीक है, एक आप हाइड्रोजन होर लैंदे आ, उहदे कोल भी किन्ने होणगे 1। ये आपस दे विच अपना बॉन्ड की करनगे शेयर। हुण ये हाइड्रोजन दे कोल भी 2 इलैक्ट्रॉन ने, इस हाइड्रोजन के कोल भी 2 इलैक्ट्रॉन ने, तो कोई भी जिहड़ा एटम है वो स्टेबल हुंदा कदों है, जदों नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लैंदा। हुण इहदी जिहड़ी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है मीनस हीलीयम दे नाल दी हो जाएगी, मीनस ये स्टेबल होएगा, तो उन्हें शेयरिंग दे नाल बॉन्ड बन रहा है, इक्वल शेयरिंग होएगी। ठीक है, तो यह बॉन्ड है जिहड़ा किहड़ा बनूगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मीनस इसका डी ऑप्शन करैक्ट है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन टू एटम्स। नैक्सट देखो, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज़ वैरी लार्ज बिकॉज कार्बन के जोड़े कंपाउंड्स ने उन्होंने नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा होंगी है। इसका कारण की है, ए ऑप्शन की है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, बी इज इट हैज़ नॉन मैटैलिक करैक्टर, सी इट शोज एलोट्रॉपी, डी इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखो टेट्रावेलेंट का मतलब की है, टेट्रा मतलब होंगे 4, वैलेंट का मतलब होंगे दी वैलेंसी, मीनस कि 4 ये वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स ने। ओके, तो हुण ये लार्ज जोड़े कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो होंगे ने स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी करके। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की होंगी है भी कार्बन अपने नाल ही काफ़ी जोड़े बॉन्ड्स बना के, मतलब लॉन्ग चेन्स बना के ना ये कंपाउंड्स बनाता है। हुण ये जिहड़ी चेन बनाई आपां दिस इज़ अ लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन की ब्रांचिंग दे विच भी चेन्स एग्जिस्ट करदियां नेगियां, मतलब ब्रांच बनाएगा ये। ठीक है, और इहदियां क्लोज्ड जिहड़ियां नेगियां वो भी जड़े नेगे कह लो कि कंपाउंड्स बनते नेगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन की अपने नाल ही जुड़न की जड़ी एबिलिटी है, इसनूं कैटिनेशन कहा जाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी करके ही कार्बन के जड़े काफ़ी कंपाउंड्स ने वो एग्जिस्ट करते हैं। सो इसका डी ऑप्शन आएगा, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रैंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द एसिड की जी स्ट्रैंथ है वो किस चीज़ के उपर डिपेंड करती है। ए द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द एसिड, बी डेंसिटी, सी ऑक्सीजन, डी कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फर्निश्ड बाय एसिड ऑन द आयोनाइजेशन। देखो एक तो जोड़े क्वेश्चनस ने वो पेपर के रिपीट इन्ने नहीं होंगे है भी, जोड़े अपने आप प्रीवियस ईयर के पेपर जोड़े ने सॉल्व इस करके करते हैं ताकि तुहानूं एक्चुअली आइडिया हो सके भी क्वेश्चनस किस टाइप के आते हैं, किस लैवल के आते हैं। ठीक है, इन्हों के मतलब रट्टाफिकेशन जी ना करो भी, इन्हों के MCQs जोड़े ने भी यही आंसर जोड़े ने लर्न करी चलो, इन्हों के मतलब बेसिक कंसैप्ट्स नूं समझो। हो सकता है जोड़े इस ईयर के क्वेश्चनस आन वो कंसैप्ट्स यूज होन। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं हम, स्ट्रैंथ ऑफ एसिड जी कि उपर डिपेंड करती है। ए ऑप्शन की है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द एसिड, किन्ने हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एटम्स के उपर प्रेजेंट डिपेंड करेगी स्ट्रैंथ एसिड की। बी इज द डेंसिटी, सी ऑक्सीजन के उपर, डी क्या है कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय एसिड ऑन आयोनाइजेशन। जी स्ट्रैंथ है वो एसिड की किस के उपर डिपेंड करती है, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। डी ऑप्शन करैक्ट है इस क्वेश्चन का, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। जिमें एग्जाम्पल देखो HCl एसिड है ना, यदि जेकर आप आयोनाइजेशन करांगे H पॉजिटिव प्लस Cl नैगेटिव बनूंगी। ओके, तो मीनस इतने H पॉजिटिव आयन्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन आयन्स की फॉर्मेशन हो रही है। ओके,
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ NaOH ਹੈ, NaOH ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। Next is the concentration of solution containing 40 gram of common salt in a 320 gram of water in terms of mass by mass percentage of solution is। देखो 40 ग्राम जो कॉमन सॉल्ट है आप 320 ग्राम वाटर के डिजोल्व किया है। मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला की होंगे कि मास ऑफ सल्यूट का जोड़ा मास है उन्होंने टोटल मास के नाल की करांगे आप डिवाइड, तो टोटल मास के नाल डिवाइड करके परसेंटेज कढ़न के लिए 100 के नाल की किया जाऊगा मल्टीप्लाई। सल्यूट का मास कितना गिवन है क्वेश्चन च 40, टोटल मास कितना बनूगा इसका, देखो 320 प्लस 40, ओके। तो मीन्स इट बिकम्स 40 बाय 320 प्लस 40, इट बिकम्स 40 बाय 360 इंटू क्या आ गया 100, ओके। जदों तुसी इस नूं सॉल्व करोगे कैलकुलेशंस नूं, इट बिकम्स 11.1%, ओके। तो मीन्स इस क्वेश्चन का जोड़ा आंसर है वो की है, सी ऑप्शन है 11.1%। नेक्स्ट इज a key of mechanical piano struck gently and then struck again but much harder this time in the second case। एक मतलब कि ਉਹਦੀ की है जी ना स्ट्रक की जा रही हैगी मकैनिकल पियानो ਦੀ, ठीक है, दूजी वारी ना मतलब काफ़ी हार्डली जी स्ट्रक किया जाता है उन्होंने। तो की होगा, ऑप्शंस देखते हैं आप इससे। इज साउंड विल बी लाउडर बट दी पिच विल नॉट बी डिफरेंट, साउंड लाउड होएगी बट पिच है जी डिफरेंट नहीं होगी। B is a sound will be louder and pitch will also be higher। C is a sound will be louder but pitch will be lower। D क्या, both loudness and pitch will remain unaffected। हार्डली स्ट्रक कर रहे हैं तो देखो साउंड तो वो लाउड आएगी पर पिच के उपर कोई भी इफैक्ट नहीं पऊगा, बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करैक्ट रहेगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास। एक रे है लाइट की, वह ट्रैवल कर रही है ग्लास के विचों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना 1.52, वाटर के विच एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना है 1.33 ऑब्लिकली द रे ऑफ लाइट। ये ना रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। देखो आप एक ग्लास बना लिया, ये मान लो इत्थे वाटर प्रेजेंट है, कोई रे ऑफ लाइट है जी वो एंटर कर रही है इस दे विच। बेसिकली तो वैसे उन्होंने एवें जाना चाहिए सी सीधा सीधा, पर की हुंदा है देखो ये की है वाटर की है रेयर मीडियम, ग्लास की है डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट जदों रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर कर दी है इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। आ नॉर्मल लाइन है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल दे टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी जदों रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। जदों डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो दूर होएगी, ओके। तो हम क्वेश्चन दे विच की सी भी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास दे विच ट्रैवल कर रही है, वाटर दे विच एंटर कर रही है, मीनस रेयर टू डेंसर टू की जा रही है रेयर मीडियम, ग्लास इज डेंसर, वाटर इज रेयर मीडियम। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब सी ऑप्शन है जोड़ा इसका करैक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करैक्ट फॉर अ सर्किट हैविंग सीरीज कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंसिस। केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट होएगी अगर ना सीरीज कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंसिस है। एक है करंट एंड वोल्टेज बोथ आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट रजिस्टर्स। बी ऑप्शन इज वोल्टेज इज सेम अक्रॉस रजिस्टर्स एंड
current divides between them. C option is current is same throughout the circuit and voltage divides between the resistors. D option is current and voltage both are same across all resistors. देखो अगर आप सीरीज कंबीनेशन की गल कर रहे हैं, मान लो ये तीन आप रजिस्टर्स लए ने, ये किने सीरीज कंबीनेशन दे विच लगाए ने आपां, तो देखो इनू करंट है जिहड़ा इन्हां तीनों रजिस्टर्स नू करंट है जिहड़ा वो सेम मिलेगा, बट जिहड़ी वोल्टेज है, ठीक है, जिहड़ी वोल्टेज है ना वो इस दे क्रॉस की होएगी, डिफरेंट होएगी। सीरीज कंबीनेशन दे विच करंट सेम आएगा, वोल्टेज की डिवाइड कर जूगी, तो मीनस इहदा जिहड़ा सी ऑप्शन है वो सही है। करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट एंड वोल्टेज डिवाइड्स बिटवीन द रजिस्टर्स। अगर यही मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लैन पैरेलल कंबीनेशन दे विच तो वो भी आप डिस्कस कर लैंदे आ। अगर मान लो पैरेलल कंबीनेशन ऑफ रजिस्टर्स होवे, पैरेलल कंबीनेशन रजिस्टर है तो करंट है जिहड़ा वो देखो तीनों रजिस्टर्स नूं अलग अलग जाएगा, बट जिहड़ी इन्हां दी वोल्टेज होएगी, वोल्टेज की होगी, सेम होगी। पैरेलल कंबीनेशन दे विच करंट डिफरेंट हुंदा है, वोल्टेज सेम हुंदी है। सीरीज कंबीनेशन दे विच करंट सेम हुंदा है ते वोल्टेज डिफरेंट हुंदी है। तो इहदा सी ऑप्शन करैक्ट सी क्वेश्चन दा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। A person uses a concave mirror for shaving. What should be the position of his face in front of it? एक पर्सन है जिहड़ा कनकेव मिरर यूज़ कर रहा है शेव करन दे लई, ठीक है, उहदी जिहड़ी पोजीशन है फेस दी उहदे सामने की होनी चाहिए है। ए ऑप्शन की है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी एट फोकस, सी बिटवीन पोल्स एंड फोकस एंड डी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किहड़ी एप्लीकेशन के उपर बेस्ड होएगा आप देखते हैं। देखो ये आपाने कोई कनकेव मिरर लैगा तो जदों आप ऑबजैक्ट पोल ते फोकस के विच रखांगे, पोल ते फोकस के विच रखांगे तो उस ऑबजैक्ट दे विच जिहड़ी इमेज की फॉर्मेशन हुंदी है बिहाइंड द मिरर होएगी, लार्ज साइज़ की होएगी। तो मीनस ये वाला जिहड़ा कंसैप्ट आप यूज़ करांगे, ठीक है, जो शेविंग मिरर की तरह यूज़ कर रहे हैं कनकेव मिरर नूं, तो मीनस किहड़ा ऑप्शन सही होएगा इहदा? सी बिटवीन पोल्स एंड फोकस, बिटवीन पोल्स एंड फोकस वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीवी सेट पिक्चर ट्यूब इमिट्स अ बीम ऑफ इलैक्ट्रॉन। एक मतलब कि टीवी सेट पिक्चर ट्यूब है वो इलैक्ट्रॉन्स की बीम इमिट कर रही है। करंट ड्यू टू बीम कितना है? 10 मिलीएम्पियर है। हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन एवरी सैकेंड? किन्ने इलैक्ट्रॉन जड़े ने टीवी स्क्रीन के उपर स्ट्राइक करनगे हरेक सैकेंड। इस दे लई आपां कढदे हां। देखो जिहड़ा टाइम है, टाइम किन्ना हैगा? 1 सैकेंड है। करंट कढना है, करंट की हुंदा? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज तो देखो दिता नहीं होया, इत्थे आपां क्वांटाइजेशन वाला यूज़ करांगे रूल भी। चार्ज किहदे इक्वल हुंदा हैगा? एन ई दे। एन इज़ एन इंटीजर, टाइम 1 ही है। करंट किहदे इक्वल आ गया? एन ई। करंट कितना सीगा? 10 मिलीएम्पियर है। 10 मिलीएम्पियर है इज इक्वल टू की आऊगा? एन ई। हुण जिहड़ा ये एन है वो किहदे इक्वल आऊगा? 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि मिलीएम्पियर है, इनू एम्पियर च कन्वर्ट करांगे। ओवर ई आ जाएगा। ई मतलब चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज कितना हुंदा है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर किसके इक्वल आऊगा? मीनस एन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। जो इनू सॉल्व करोगे ये बनूगा 5/8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17। ए ऑप्शन इज द करैक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन इलैक्ट्रिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 25% कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन सेम। एक इलैक्ट्रिक वायर नूं स्ट्रैच किया, उसकी लेंथ है जी 25% इंक्रीज की है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन सेम है। बाय वट परसेंटेज विल द रजिस्टेंस भी इंक्रीजड एंड वट विल बी द इंक्रीज इन इट्स रजिस्टिविटी? रजिस्टेंस कितनी इंक्रीज करूगी, वो रजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज करूगी दसना आपाने। ए ऑप्शन की है? रजिस्टेंस 75%,
ਰਜਿਸਟਿविटी कितनी है 25%। बी ऑप्शन की है रजिस्टेंस कितनी है 25%। रजिस्टिविटी कितनी है 75%। सी ऑप्शन के रजिस्टेंस 25%, रजिस्टिविटी के उपर कोई इफैक्ट नहीं। डी हैगा रजिस्टेंस है 75%, रजिस्टिविटी की हैगी नो चेंज। देखो रजिस्टेंस कि इक्वल होंगी है रो एल अपॉन ए। रजिस्टेंस है जो लैंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है। जो लैंथ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है, जो लैंथ वधाई जिन्नी रजिस्टेंस भी उन्नी वधूगी, मतलब रजिस्टेंस कितनी आऊगी 25%। ए तो डी ऑप्शन कट के। रजिस्टिविटी नेचर के उपर डिपेंड करती हैगी, ओके, लैंथ के उपर डिपेंड ही नहीं करती, तो रजिस्टिविटी के नो चेंज। तो मीनस इसका सी ऑप्शन आएगा रजिस्टेंस 25% तो रजिस्टिविटी नो चेंज। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ द डिसप्लेसमेंट अकर्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द टाइम। जी डिसप्लेसमेंट है और टाइम के की है स्केयर के प्रोपोर्शनल है, दैन ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो जो ऑब्जेक्ट किमें मूव करूगा विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी, यूनीफॉर्म एसलरेशन, सी इंक्रीजिंग एसलरेशन और डी इज द डिक्रीजिंग एसलरेशन। देखो आप इक्वेशन तो स्टडी करते हैं, जी डिसप्लेसमेंट है वो कि टाइम के स्केयर के प्रोपोर्शनल है, ओके। तो एस कि इक्वल आऊगा मीनस यू टी, इक्वेशन यूज करते यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर। जे ये मान लीए बॉडी रेस्ट पर है तो मीनस एस कि इक्वल आ जाऊगा हाफ ऑफ ए टी स्केयर, बिकॉज यू जीरो हो जाएगा, हाफ ऑफ ए टी स्केयर। हुण एस टी के स्केयर के प्रोपोर्शनल उदों ही होगा ना जो मीनस एसलरेशन की होगी कॉन्सटेंट, तो मीनस एसलरेशन की होगी यूनीफॉर्म। तो मीनस इसका किहड़ा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन कि यूनीफॉर्म एसलरेशन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनीफॉर्म स्पीड। एक वाटर टैंकर है जिन्हों 2/3 आप फिल किया यूनीफॉर्म स्पीड के नाल चल रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। देखो एक टैंकर से ना वो वाटर फिल, जो ब्रेक लगेगी पानी की करूगा उपर नूं राइज करूगा तो अगे वाल नूं वधूगा। तो मीनस क्या आऊगा मूव फॉरवर्ड एंड ऑप्शन जे भी आऊगा राइज। ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा तो राइज होगा। इसका कारण की होंगे राइज होने का फॉरवर्ड जाने का, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन करके होंगे फिनोमिना। नैक्सट इज एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। एक ऑब्जेक्ट है उन्होंने 1 by 1 3 लिक्विड्स पा रहे हैं, उन्होंने मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट विद इन्ना पार्ट वोदा जो वॉल्यूम का ना वो आउटसाइड रह रहा है। देखो 1 by 9 2 by 11 3 by 7 डेंसिटी D1 D2 D3 है इन्हों रिस्पैक्टिवली। तो किहड़ी स्टेटमेंट है जी करैक्ट है, मतलब डेंसिटी की वेरीएशन दसनी है आपां ने। चलो इन्हूं सॉल्व करते हैं आपां। तो 1 by 9 कि इक्वल बनेगा 0.11, तो 2 by 11 है जोड़ा इट बिकम्स 0.18। 3 by 7 किसके इक्वल आएगा 0.42, मतलब डेंसिटी किहदी ज़्यादा है D3 दी होएगी ज़्यादा, D3 ज़्यादा होएगी क्योंकि जोड़े मतलब ना ऑब्जेक्ट है फ्लोट कर रहा है बिना पार्ट। फ्लोट किहड़ा करूगा जिहदी डेंसिटी की होगी घट, तो जिहड़ा मतलब कि ज़्यादा हैवी होगा वो की करूगा डुब जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन दे विच किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट होएगी कि D3 डेंसिटी है ज़्यादा हैगी, मतलब डी ऑप्शन आएगा इसका D2 तो। D2 ग्रेटर है जोड़ा D1 तो। नैक्सट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज मेड अप ऑफ। जी एसिड रेन है वो किस तो बनती है। ए ऑप्शन इज इथेन एंड CO2, बी इज मीथेन एंड CO2, सी इज NO2 एंड SO2, डी इज सल्फ्यूरिक हो गया एसिड तो NH4। देखो एसिड रेन दे विच NO2 तो SO2 के कंपोनेंट्स होंगे ने, सी ऑप्शन करैक्ट होएगा इसका NO2 एंड SO2। Next is Nita put 2-3 drops of dilute iodine solution on a small sample of raw food paste. It turned blue black. The component of food tested through the test is 2-3 ड्रॉप जोड़े ने आयोडीन सोल्यूशन के पाती है वो फूड पेस्ट के उपर, वह कलर है जोड़ा ब्लू ब्लैक बन जाता है। किस कंपोनेंट की प्रेजेंस है जो ये टेस्ट शो कर रहा है
ए क्या है प्रोटीन, बी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, सी इज फैट एंड डी इज द विटामिन है। जिहड़ी मतलब कि ब्लू कलर की फॉर्मेशन है वो शो करती है इत्थे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस, बी ऑप्शन आएगा। आयोडीन सोल्यूशन है जिहड़ी आपां यूज़ कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डिटैक्शन वास्ते। नैक्सट क्वेश्चन 20 देखो, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कसकटा किस दी एग्जाम्पल है, कि है सैप्रोफाइटिक प्लांट दी, बी क्या है पैरासिटिक प्लांट दी, सी सिंबियोटिक प्लांट दी और डी आटोट्रॉपिक। कसकटा हैगा पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स मीनस कि जिहड़ा किसी होर लिविंग के उपर डिपेंड करता हुंदा अपनी न्यूट्रीशन के लिए, ओके पैरासिटिक प्लांट है ये कसकटा। ओके नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विच इज़ इंटर कैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन दी प्लांट बॉडी, जिहड़ी मतलब इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो कित्थे हुंदी है प्लांट बॉडी दे विच। ए ऑप्शन इज ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, बी इज ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट, सी इज बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स और डी इज बेस ऑफ द स्टेम। जिहड़ी इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो हुंदी है बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, सी ऑप्शन आएगा इसका। देखो आप ये डायग्राम के भी देखते हैं, ये डायग्राम देखो इसकी मैरिस्टेम की, जो टिप है टिप के उपर की होंगे एपिकल मैरिस्टेम, जोड़ा नोड है नोड के की होगा इंटर कैलरी मैरिस्टेम, तो जोड़ा ये प्लांट का बिल्कुल बिलो पोर्शन है इत्थे की होगा ये लैटरल मैरिस्टेम। ओके मतलब बिलो ते ये तीन तरह के मैरिस्टेम्स होंगे ने, जिवें दे गन्ना होंगे गन्ना इहदा ये आ वाला जिवें आ पोरी होगी आ वाली पोरी आ विच कनैक्शन है ना इसदे, मतलब इत्थे इंटर कैलरी जिहड़ा मैरिस्टेम है वो प्रेजेंट हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स फस्ट कम्स टू, ऑक्सीजन रिच ब्लड है जिहड़ा वो कित्थे आंदा है। देखो आपां हार्ट की फंक्शनिंग देखते हैं, हार्ट दे विच की हुंदे ने 4 चैंबर, दिस इज अ राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लैफ्ट ऑरिकल, लैफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स तो जिहड़ा ब्लड है वो किहदे विच एंटर करदा है, लैफ्ट ऑरिकल दे विच, लैफ्ट ऑरिकल जां फिर लैफ्ट ऑट्रियम, इस तो जिहड़ा ब्लड है वो कित्थे जांदा है वेंट्रिकल दे विच, वेंट्रिकल तो जिहड़ा ब्लड है वो कित्थे चला जांदा है बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तो फिर जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करदा है राइट ऑट्रियम दे विच, राइट ऑट्रियम तो कित्थे जांदा है राइट वेंट्रिकल दे विच, राइट वेंट्रिकल तो जिहड़ा ब्लड है वो फिर लंग्स तक चला जाता है। यह सर्कल हुंदा ब्लड का, ठीक है। जिहड़ा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स तो पहला कित्थे आंदा हैगा लैफ्ट ऑट्रियम दे विच, लैफ्ट ऑट्रियम दे विच आंदा है, ए ऑप्शन करैक्ट है इसका लैफ्ट ऑट्रियम। नैक्सट क्वेश्चन इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किस दे नाल फैलदा है, ए ऑप्शन इज बैक्टीरिया, बी इज फंजाई, सी इज द प्रोटोजोआ एंड डी इज द वायरस। मलेरिया हुंदा हैगा प्रोटोजोआ करके, सी ऑप्शन आएगा इसका। नैक्सट इज concepts of double fertilization and triple fusion in a sexual reproduction of plants are related with them। डबल फर्टिलाइजेशन ते ट्रिपल फ्यूजन के जोड़े कंसैप्ट्स ने वो किहदे नाल रिलेटेड नेगे, ए फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अनदर विद टू पोलर न्यूक्लाई, बी फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अनदर विद टू सिनर्जिड cells, C is the fusion of one sperm with the egg cells and another with the two antipodal cells, or D is the fusion of one sperm with the egg cell and another with the two stigmatal buds। इसका जिहड़ा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो हैगा फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अनदर विद टू पोलर न्यूक्लाई, ए ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का भी। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मैनी हैप्लोइड सैल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2, मियोसिस 2 दे विच किन्ने सैल्स बनते हैं ये दसना आपां ने। इस दे विच देखो ये एक सैल है, जो मियोसिस 1 हुंदा है ये 2 सैल्स दे विच टुट जांदा है, हुण अगे ये फिर अगे 2 च टुटणगे, ये भी अगे 2 च, ये की हो गया मियोसिस 2। मियोसिस 2 दे विच किन्ने हैप्लोइड सैल बन रहे नेगे, 4, ए ऑप्शन आएगा इसका भी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In which of the following science process skills students draw conclusions about the cause of an observation? किस प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? A option is estimation, B is prediction, C is inferences, D is the interpreting। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਰੈਂਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ठीक है, मतलब इसका जोड़ा सी ऑप्शन करैक्ट आएगा। नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स इन साइंस। टीचिंग एड्स इन साइंस एक है डू नॉट हैल्प मच एज साइंस एज फिक्स कंटेंट विच नीड टू बी मैमोराइज्ड। भी कहते भी जो साइंस हैगा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कंटेंट है फिक्स ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ लर्न ही करना पैंदा है। बी के कुड बी यूज्ड एट प्राइमरी लैवल बट सैकेंडरी एंड सीनियर सैकेंडरी पैडागोजी डोंट रिक्वायर दैम। सी ऑप्शन की आर यूजफुल इन बायोलॉजी बट फिजिक्स केमिस्ट्री आर बेस्ट टाउट थ्रू लेक्चर डिस्कशन मैथड। डी इज शुड बी यूज रेगुलरली टू डिवेलप प्रोसैस एंड थिंकिंग स्किल्स इन साइंस। देखो टीचिंग एड्स ने ना वो अपनी एजुकेशन दे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो यदा जो सही ऑप्शन है वो आएगा डी ऑप्शन कि रेगुलरली यूज़ करने चाहिए नेगे ये। ठीक है ना, जिहदे नाल जिहड़े थिंकिंग स्किल्स नेगियां वो बच्चे दियां डिवेलप हो सकन। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप 28। अगर तुहानूं फिर भी किसी क्वेश्चन दे विच प्रॉब्लम आती है ना इन्हां दे विचों तां तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच मैंशन कर सकते होगे। नैक्सट क्वेश्चन इज द प्रिंसीपल ऑफ साइंस विच टेल्स अस टू चूज द सिंपलेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डैट फिट्स द एविडेंस इज। मतलब किहड़ा इन्हां दे विच मैथड है जिहड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन दे उपर जोर दिंदा है। इज द प्रिंसीपल ऑफ पार्सिमनी, B principle of speculation, C is principle of simplicity and D is the deductive approach। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज द प्रिंसीपल ऑफ पार्सिमनी। ए ऑप्शन आएगा। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ भी ਜਿਹੜੀ सिंपल एक्सप्लेनेशन है किसी भी टॉपिक की किसी भी कंटेंट की डैट इज़ द बेस्ट। मीनस ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ टीच करना है किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਤਾਂ सिंपल तो सिंपल ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जाम्पल्स नेगियां ਉਹ पिक करनियां नेगियां अपनी एक्सप्लेनेशन ਦੇ ਲਈ। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन 29 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कंसर्नड विद असैसिंग साइकोमोटर डोमेन ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ साइंस क्लासरूम। केड़ी मतलब एक्टिविटी है जी वो साइकोमोटर डोमेन है जी साइकोमोटर डोमेन है जी उस दे लई असैस कर रही हैगी। ए क्या आस्क की क्वेश्चन आंसर, बी की डिस्कशन, सी लैबोरेटरी, डी इज द यूनिट टेस्ट। देखो पहली गल तो सुनो भी साइकोमोटर डोमेन की होंगी है। साइकोमोटर डोमेन एबिलिटी टू परफॉर्म अ फिजिकल टास्क। फिजिकल टास्क है जोड़ा आप परफॉर्म करते हैं इसके विच तो जो फिजिकल टास्क है वो किस दे विच परफॉर्म किया जाता है वो आएगा लैबोरेटरी आउटकम्स आएगा इस दे नाल। ठीक है, लैबोरेटरी आउटकम्स सी ऑप्शन आएगा इसका। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन स्टैम बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। जो स्टैम बेस्ड करिकुलम है वो किस चीज़ के उपर बेस्ड होंगे? ए इज अप्लाइड अप्रोच, बी इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड अप्रोच, सी डिसिप्लिनरी अप्रोच, डी क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। देखो जी इहदा सही ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। ओके जिहड़ा स्टैम बेस्ड करिकुलम है एक टीचिंग मैथड है जिस दे विच साइंस हो गया, टैक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग, मैथ इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कोरलेट किया जाता है। ये सारे सबजैक्ट नेगे वो किवें इकट्ठे वर्क करते हैं ना ये स्टैम बेस्ड करिकुलम दे विच आंदा है। ठीक है, सो इसका जिहड़ा बी ऑप्शन है ये करैक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। होप सो कि तुहानूं सारे क्वेश्चन जिहड़े ने इसके प्रॉपरली समझ आ गए होणगे। अगर फिर भी तुहानूं किसी क्वेश्चन दे विच प्रॉब्लम आती है तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच लिख सकदे होगे। ओके।